Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Aishara Wagh and you are watching me on my YouTube channel where I talk mostly all about fashion designing, fashion education and some vlog. So if you're new to this channel then please subscribe, and this all is just a formality. Let's just get into our second part of this series, which is all about fashion designing. So today we are going to talk about how to make a resume. Today we are going to talk about two types of resume. First one gonna be a total fresher resume, and the second one gonna be a experienced resume, and what things you should consider before making a fashion resume, how creative it should look like, what are the do's and don'ts that you should do while you're making your resume, and what they actually gonna look into your fashion resume, what are the things that you should mention for sure. Also I'm going to share my resume with you all and the mistakes that I did as a fresher that you should avoid. I'm going to talk about that too. So to begin, I'm going to refer few applications that you should download before you are making your CV that are mentioned here. From all of these, I am personally using Canva, and that is very handy and suitable for all other things. So basically that app looks like this. If you go in this application, you have to search in the search bar that resume, then there will be a lot of number of resumes that you can find over here. If you want to go for fashion resume, then search for fashion resume. आपको बहुत सारे creative resumes यहाँ पे मिलेंगे, so you can pick any one of these and आप उसको edit कर सकते हो. Now what you have to do is make sure that you are selecting a template जिसका फोटो जो है वो मिड में ना हो. Your photo should be somewhere in upper right or upper left. That should be not at your lower side or in the middle of the page. Why I am saying this, क्योंकि उससे पूरा जो आपका resume का focus है वो आपके फोटो पे चला जाएगा, एंड दैट वी डोंट वांट. फोटो क्रिएटिव रेज्यूमे में, फैशन डिजाइनिंग में बहुत ज़रूरी है. यू शुड अपलोड अ फोटो. सेकेंड थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि मेक श्योर आपके फोटो के साइड में बड़े हेडिंग्स में आपका नाम हो. दैट शुड नॉट बी इन द लोअर साइड. आपके फोटो के नीचे नहीं होना चाहिए. योर फोटो इज इन राइट साइड, देन योर नेम शुड बी एट द लेफ्ट साइड. इफ योर फोटो इज इन द लेफ्ट साइड, देन योर नेम शुड बी एट द राइट साइड. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि फोटो के साथ बाजू में ही नाम हो आपका, एंड विद द नेम नीचे आपका जो भी डिजाइनिंग डिग्री है. इफ यू हैव डन BSc इन फैशन डिजाइनिंग, देन you have to write BSc in fashion design. So if you have done masters of fashion design, then you have to write MTech fashion designing. And then about you should be exactly in the lower side of your degree. अगर आपने वहाँ पे fashion designing लिखा है, then that should be in a paragraph, and नीचे आपके exactly वहाँ पे about me होना चाहिए. Make sure कि आप about me के लिए एक अलग से कॉलम ना बनाएं, क्योंकि वो एक तरह से वो जगह खाएगा, जो कि it should be quick visible to everyone. Your photo should be very professional. Either you are wearing formals, either you are wearing a plain t-shirt, or either you are wearing something decent. अभी नहीं कि आप passport size photo use करो. That is not compulsory at all. You should use a photo that will be little decent. Yes, you can use it something which is more beautiful and which will actually speak for your features. Make sure that photo is not much of edited. कोई Snapchat वाला photo नहीं हो. A normal photograph. You have to make another column for your work experience. Guys, right now I'm talking about those who have some experience. If you have work experience, make sure you highlight that in the first column of your resume. Most of the time लोग ये mistake करते हैं that they put education first, then achievements, awards and other things. People are not interested to know all these things. Education and all that is important as well, but first if you have experience, then make sure कि आप उस चीज़ को highlight करो. Make sure कि आप उस चीज़ को as a column highlight करो, और and if you are making a partition, then आप उस चीज़ को right या फिर left में mention करो. And how much experience you have, whatever experience you have to mention 2 or 3 points, not more than that. 2 or 3 will be enough in your resume. If you want to make it in detail, then you have to make a CV. I'll also talk about making a CV that will be about 2 to 3 pages. For resume, it is restricted to use 1 page. So right now I'm talking about resume. So you have to put 2 to 3 points about your job. So आप दो तरह से work experience लिख सकते हो, या तो एक हॉरिजॉन्टल वे में लिखो या तो वर्टिकल वे में. तो आई वुड सजेस्ट कि वर्टिकली ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज इन हॉरिजॉन्टल वे आपको बहुत ज़्यादा पेज स्पेस मिल जाती है. समहाउ आई फील कि रेज्यूमे थोड़ा सा खाली खाली लगता है. सो वर्टिकली आई वुड प्रेफर. सो इफ़ यू आर मेंशनिंग योर वर्क एक्सपीरियंस इन अ वर्टिकल वे, सो मेक श्योर कि एग्जैक्ट एक्सपीरियंस के बाजू में आपका डिटेल्स हो, लाइक योर फोन नंबर, लाइक योर email ID, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, marital status एज वेल. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन CV. सो एज यू कैन सी हियर कि मैंने मेरे रिज्यूमे में राइट साइड में अगर मेरा वर्क एक्सपीरियंस लिखा था, तो लेफ्ट साइड में मैंने डिटेल्स एंड सब की स्किल्स लिखा है. माई एक्सपर्टीज आई हैव रिटन हियर. अगर आपको लगता है आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपीरियंस है, सो यू कैन राइट इट लाइक दैट, बट मेक श्योर कि आप उसके आगे आप
एक्सपर्टीज दिखाने के लिए जो भी सिंबल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉट यूज़ किए थे कि हाउ मेनी नंबर्स आई गिव माई सेल्फ फॉर दिस, तो आप उसकी जगह पे एक बैटरी लाइन भी यूज़ कर सकते हो, और यू कैन यूज़ अदर सिम्बॉल्स लाइक दिस, दैट विल लुक मोर क्रिएटिव, दैट विल लुक मोर इफेक्टिव। अगर कोई भी आपका रेज्यूमे देखता है तो सबसे पहले उसकी नज़र वहीं पे जाएंगी। दैट इज़ वाई पीपल शुड यूज सच क्रिएटिव थिंग्स in their resume while you are applying for fashion designing or graphic designing, something like this. Also with that you can also add a croquis or a illustration that you have made by yourself, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एज ए एग्जाम्पल दिखाया है कि you can add a figure like this। आप आपका खुद का भी कुछ ऐड कर सकते हो with all your details mentioned in the page। आफ्टर दैट मैंने अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो एकदम नीचे डाले हैं, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लोअर साइड में, एंड इंस्टेड ऑफ योर पर्सनल डिटेल्स यू कैन राइट इट डाउन लाइक वाई समवन शुड हायर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज माई एकेडमिक अचीवमेंट्स, इंटर्नशिप्स, ऑल दिस थिंग्स बिलो दी वर्क एक्सपीरियंस। जो भी मैंने अचीवमेंट किया है एकेडमिक्स में वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, किसी फैशन शो में पार्टिसिपेट किया है, ऑल अदर थिंग्स जैसे कोई इंटर्नशिप, यू कैन मेंशन दैट। एंड देन आता है एजुकेशन का कॉलम, जहाँ पे मैंने सिर्फ अपना ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर्स डिग्री इन फैशन डिजाइनिंग विच इज़ फ्रॉम NIFD वो ऐड किया है। 10th 12th ये सब चीज़ें ऐड करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर इन क्रिएटिव रेज्यूमे, अदरवाइज इन अदर रेज्यूमेज यू कैन ऐड इट, बट इन फैशन डिजाइनिंग रेज्यूमे यू कैन सर्वाइव विद दिस। सो आपका अगर किसी चीज़ में ग्रेजुएशन किया है और डिप्लोमा किया है देन यू कैन मेंशन दैट दिस इज समथिंग दैट अ रेज्यूमे शुड लुक लाइक। एंड इसमें बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे रेज्यूमेज मैंने देखे हैं, मेरे कलीग्स के, मेरे जो सीनियर्स थे उनके इससे भी अच्छे अच्छे रेज्यूमेज हैं, एंड दैट रियली डिपेंड्स on how creative you are and how much creativity you have to show in your resume. So one more thing to keep in mind कि ज़्यादा क्रिएटिविटी करने के चक्कर में आप ज़्यादा उसे भर ना दो। इट शुड बी लुक सिंपल एज वेल, नॉमिनल कंटेंट होना चाहिए, आपका सारे जो फॉन्ट्स है वो सारे सेम होने चाहिए थ्रू आउट योर पेज, एंड जो कलर्स होते हैं वो सारे सटल कलर्स होना चाहिए, एकदम से कोई डार्क भड़क येलो एंड पिंक ऐसे कलर्स मत यूज़ करना, थोड़े से पेस्टल कलर्स होने चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट हाउ यू कैन मेक अ रेज्यूमे व्हेन यू आर अ फ्रेशर। फर्स्ट थिंग तो सेम होगी आपका फोटोज नेम। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर लाइक एकेडमिक्स अचीवमेंट, और अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट, लाइक एग्जैक्टली वर्क एक्सपीरियंस ही लिखना, बट देन इन फर्स्ट पॉइंट स्टेप में लिखना है इंटर्नशिप, एंड देन आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना, एंड सिंस कब से कब तक आप वहाँ पे थे एंड आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे की है वो थोड़ा ज़्यादा मेंशन करना। वाई आई एम सेइंग दिस कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपका जो भी इंटर्नशिप हो या फिर जो भी पर्टिकुलर वर्क एक्सपीरियंस हो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। एक भी जगह पे काम किया तो वहाँ पे आपने क्या किया है, एंड अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप भी नहीं है पर्टिकुलरली तो आपको आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। जैसे कि आपने कहीं पे, जैसे कि आपने कोई फैशन शो किया है, वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स में आपने अपना थीम का नेम, सारी चीज़ें, व्हाट थिंग्स यू इनिशिएटेड, वो सारी चीज़ें आपको 2-3 पॉइंट्स में लिखनी है। देन इन सेकंड पॉइंट आई अवॉर्डेड एज दिस, देन आपको उस बारे में थोड़ा और जानकारी देनी है। अदर थिंग्स दैट यू हैव वर्क इन योर प्रोजेक्ट्स भी आप मेंशन कर सकते हो एज अनदर कॉलम, आप डाल सकते हो प्रोजेक्ट्स। लाइक मैंने अपने कॉलेज टाइम में एक केस स्टडी किया था टेक्सटाइल स्टडीज पे, आई यूज्ड टू राइट अबाउट दैट व्हेन आई वाज अ फ्रेशर। फ्रीलांसिंग की अगर आपने कुछ काम किया है ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, प्रोजेक्ट टाइम्स और एज अ फ्रेशर, तो दैट टू यू कैन ऐड। एंड देन आपको आपके एजुकेशन डालनी है, की स्किल्स डालनी है। की स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव वे से डालना। इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो की स्किल्स में यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू शुड ऐड गाइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CV। जो CV आप बनाते हो वो ज़्यादातर मैक्सिमम 2 to 3 पेज का होता है। उसमें आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो, दैट व्हाट was the work you used to do in a previous organization, that what you did, where you worked, सारे प्रोजेक्ट, सारे फ्रीलांसिंग थिंग्स और अदर थिंग्स, एजुकेशन भी आपको प्रॉपरली ऐड करना पड़ता है, एंड दैट यू शुड मेक विद योर पोर्टफोलियो। एंड फॉर योर फैशन CV and a designer portfolio we will talk in our upcoming videos. That's it for this video guys. I hope you like it. If you have any queries related to resume thing then you can mention that below, or otherwise you have any other queries, that too you can mention down below. I will answer few of your questions in our next video. So yeah, that's it for this video guys. I hope you liked today's video. If you did then please like, subscribe and share my YouTube channel. We'll meet you in my next video. Until then, be a reason someone smile and keep smiling. Bye bye.